تو جو 5 abstraction لیولز ہیں ورچوائزیشن کے، اس میں سے ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر لیول۔ انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر لیول پہ ورچوائزیشن کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر لیول کے اوپر ہمیں ورچوائزیشن کی اس لیے ضرورت آتی ہے کہ بہت سا کوڈ ایسے پروسیسرز کے لیے لکھا ہوا ہے جو کہ اب آبسلیٹ ہو گئے ہیں۔ تو ایسے کوڈ کو لیگیسی سسٹمز کے اوپر رن کرنے کے لیے ہمیں ورچوائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں جس طرح ہم کسی بھی پروگرام کو ایمولیٹ کر سکتے ہیں، لائک ہم ایکس باکس کو ونڈوز پہ ایمولیٹ کر سکتے ہیں، یا سونی پلے اسٹیشن کو ایمولیٹ کر سکتے ہیں، اینڈرائڈ کو ہم ونڈوز 10 میں ایمولیٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح ہم جو انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر کو بھی ایمولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ایمولیشن ہوتی ہے وہ انسٹرکشن سیٹ کی ایمولیشن ہوتی ہے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ جتنے بھی پروسیسرز ہیں، لائک پینٹیم 4 ہے، 5 ہے، پینٹیم کور ٹو ڈو ہے، کور آئی 3 ہے، ہر پروسیسر کے لیے جو انسٹرکشن سیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کے لیے پھر انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر لیول کے اوپر ورچوائزیشن کی ضرورت پڑتی ہوتی ہے۔ جو ایم آئی پی ایس بائنری کوڈ ہے اس کو ہم x86 بیسڈ ہوسٹ مشین کے اوپر رن کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف آئزا یا انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر ایمولیشن۔ ایم آئی پی ایس کیا ہے؟ ایم آئی پی ایس از مائکرو پروسیسر وداؤٹ انٹرلاکڈ پائپ لائن اسٹیچز۔ تو یہ ایک ریڈیوس سیٹ انسٹرکشن کمپیوٹر ہے، رسک ٹائپ کمپیوٹر ہے، جس کو ایم آئی پی ایس کمپیوٹر سسٹمز نے ڈیولپ کیا تھا۔ تو اس طرح ڈفرینٹ جو انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچرز ہیں ان کو اگر ہم کسی مشین کے اوپر، ہوسٹ مشین کے اوپر رن کرنا چاہیں تو اس کو ورچوائزیشن کے تھرو ہم ایمولیٹ کر سکتے ہیں۔ With this approach, it is possible to run a large amount of legacy binary code written for various processors on any given new hardware host machine. تو اس میں کوڈ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ واٹ از کوڈ انٹرپریٹیشن؟ بیکاز وی ہیو already loaded libraries required to translate code into executable form. تو اس میں ڈائنامک بائنری ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بہت سا جو لیگیسی بائنری کوڈ ہے جو ڈفرینٹ پروسیسرز کے لیے لکھا ہوا ہے وہ نئی مشینز کے اوپر ہم اس کو رن کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے جو اپلیکیشنز پرانے سسٹمز کے لیے کوڈ ہوئی ہیں وہ نئے سسٹم کے اوپر بھی ہم ان کو رن کر سکتے ہیں۔ اس میں جو لمیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک سورس انسٹرکشن کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے یا انٹرپریٹ کرنے کے لیے نمبر آف نیٹو ٹارگٹ انسٹرکشن کو لنک کرنا پڑے گا، تو جس وجہ سے جو اس کی پرفارمنس ہے وہ لو ہوگی۔ تو اس میں جو کمپائلر کے اندر ہمیں ایک ایڈیشنل لیئر کریٹ کرنی پڑتی ہے جو انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری جو ورچوائزیشن کا دوسرا جو لیول ہے وہ دیٹ از ہارڈ ویئر ابسٹریکشن لیول ہے۔ تو ہارڈ ویئر لیول انسٹرکشن کے اوپر ہارڈ ویئر جو لیول ورچوائزیشن ہے اس کو انیبل کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے ورچوائزیشن کو بیئر ہارڈ ویئر کے اوپر انسٹال کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک ورچوئل ہارڈ ویئر انوائرمنٹ ورچوئل مشین کے لیے کریٹ ہو جاتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ، دا پروسیس مینیجز دی انڈرلائنگ ہارڈ ویئر تھرو ورچوائزیشن۔ تو اس میں جو آئیڈیا ہے کہ جو بھی کمپیوٹرز کے ریسورسز ہیں ان کو ورچوائز کیا جائے۔ فار ایگزامپل اس کا جو پروسیسر ہے، میموری ہے یا آئی او ہے، ان سب کو ورچوائزیشن
किया जाए। तो इसमें जो इसको वर्चुअलाइजेशन करने की ज़रूरत इसलिए है कि इसमें इन जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलिटी को, उनकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ किया जाए ताकि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर भी किया जा सके और उनको एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है और इसमें एप्लीकेशन आइसोलेशन भी है। तो लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज वो ये है कि दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट है वर्चुअलाइजेशन एट ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। ये सबसे कॉमन टाइप है वर्चुअलाइजेशन की। इसमें ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन के ऊपर एक कंटेनर क्रिएट किया जाता है सर्वर के ऊपर और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंसेस हैं वो उसी होस्ट सर्वर का या फिजिकल मशीन का जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसमें जो कंटेनर्स होते हैं दे बिहेव लाइक रियल सर्वर्स। एक होस्ट मशीन के ऊपर हम नंबर ऑफ कंटेनर्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है वर्चुअल होस्टिंग इन्वायरमेंट्स को क्रिएट करने के लिए ताकि हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जा सके among many mutually distrusting users. इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो स्टार्टअप और शट डाउन कॉस्ट वो कम है। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन जो यूज़ होती है ये वर्चुअल होस्टिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है और उसमें जो वर्चुअल होस्टिंग इन्वायरमेंट है उसमें हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र के दरमियान। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी जो स्टार्टअप और शट डाउन कॉस्ट कम होती है और इसमें लो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज वी हैव ओनली वन मशीन और उसी के ऊपर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वर्चुअलाइज कर सकते हैं। इसमें जो लिमिटेशन है इसमें ऑल VMs एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल मस्ट हैव द सेम काइंड ऑफ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो सेम आर्किटेक्चर का होगा। ये एग्जांपल है हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल्ड है और इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर क्रिएट होती है। उस वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर हम डिफरेंट वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जो इसमें जो पार्टीशन कर सकते हैं हार्डवेयर रिसोर्सेज की फॉर मल्टीपल VMs टू रन देयर एप्लीकेशन इन वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। एडवांटेज जो हैं OS एक्सटेंशन के वर्चुअलाइजेशन के ऊपर इसमें जो स्टार्टअप और शट डाउन कॉस्ट मिनिमम है OS level VM can easily synchronize with its environment। और इसमें जो लिमिटेशन है वो ये है कि जितने भी इसमें गेस्ट OS होंगे दैट शुड बी ऑफ द सेम काइंड। नेक्स्ट है लाइब्रेरी सपोर्ट लेवल।
तो जितने भी ऑपरेट सिस्टम्स होते हैं दे प्रोवाइड APIs. तो इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं उनको भी वर्चुअलाइज किया जा सकता है. वर्चुअलाइजेशन जो है लाइब्रेरी इंटरफेस के साथ भी पॉसिबल है और इसको कंट्रोल किया जाता है बाय कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन एप्लीकेशंस एंड द रेस्ट ऑफ द सिस्टम थ्रू API hooks. When originally an acronym for Wine is not an emulator is a compatibility layer capable of running Windows application on several POSIX compliant operating systems such as Linux and Macintosh operating system and BSD instead of simulating internal Windows logic like a virtual machine or emulator. Wine translate Windows API calls into POSIX calls on the fly, eliminating the performance and memory penalties of other methods and allowing you to clearly integrate Windows application into your desktop. तो वाइन के ज़रिए हम जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं लाइक लाइनिक्स मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम या BSD ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको वर्चुअलाइज कर सकते हैं. इसकी एक और एग्जांपल जो है वो VCUDA है, VCUDA. तो इसके ज़रिए हम जो एप्लीकेशंस जो एग्जीक्यूट होती हैं वर्चुअल मशीन्स के ऊपर उसमें GPU लेवल हार्डवेयर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. इसमें जो इसका जो एडवांटेज है इसमें इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट लो है और इसमें लिमिटेशन ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन में नॉट रन ऑन द वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट. तो ये इसमें प्रॉब्लम आ सकता है. नेक्स्ट है यूज़र एप्लीकेशन लेवल. Virtualization at the application level virtualizes an application as a virtual machine on a traditional operating system. An application often runs as a process. Therefore, application level virtualization is also known as process level virtualization. The most popular approach is to deploy high level language VMs. In this scenario, the virtualization layer sits as an application program on top of operating system and the layer exports an abstraction of a VM that can run program written and compiled to a particular abstract machine definition. Other forms of application level virtualization are known as application isolation, application sandboxing or application streaming. तो एप्लीकेशन लेवल पे जो वर्चुअलाइजेशन होती है वो एप्लीकेशन आइसोलेशन भी इसको कह सकते हैं, एप्लीकेशन सैंडबॉक्सिंग या एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग. एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन या ऐप वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम एक सेपरेट कंप्यूटर से एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं. जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं वो किसी क्लाउड पे किसी सिस्टम पे इंस्टॉल हैं और आप अपने सिस्टम पे बैठ के उन एप्लीकेशंस को या उन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं. जिस तरह गूगल डॉक है तो आप अपने सिस्टम पे बैठ के गूगल डॉक को यूज़ करते हैं. तो जो गूगल डॉक है दैट इज़ यूज़र एप्लीकेशन लेवल कि जो क्लाउड पे किसी सिस्टम के ऊपर होस्टेड है और आप अपने सिस्टम से उसको एक्सेस कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं. तो इससे हमें जो एडवांटेज है इससे एप्लीकेशन लेवल पे आइसोलेशन अवेलेबल होती है.
اور اس میں جو لمیٹیشن ہے وہ لو پرفارمنس، لو فلیکسیبلٹی اور ہائی امپلیمنٹیشن کمپلیکسٹی اس میں انکلوڈ ہے۔ یہ سنیریو ہے اپلیکیشن جو ایک نان نیٹو انوائرمنٹ میں ہے اور ایک جو اپلیکیشن ہے وہ نیٹو انوائرمنٹ میں ہے۔ تو آپریٹنگ سسٹم اے کے اوپر پروگرام اے جو ہے وہ انسٹالڈ ہے۔ اٹ ول ٹیک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم، گرافک ڈرائیور تک اس کو ڈائریکٹ ایکسیس ہے، ہارڈ ویئر انٹرفیسز تک ڈائریکٹ ایکسیس ہے، اور جو لنک لائبریریز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں آن دا سیم سسٹم۔ تو ایپلیکیشن اگر نان نیٹو انوائرمنٹ میں ہے تو اس میں جو پروگرام اے جو جس کو ہم ایکسیس کریں گے وہ اس کو ہم آپریٹنگ سسٹم بی سے ایکسیس کریں گے، اور آپریٹنگ سسٹم بی کے اوپر جو ان پٹ آؤٹ پٹ ہارڈ ویئر ریسورسز انسٹالڈ ہوں گے وہ ایمولیٹ ہوں گے، اور اسی طرح جو گرافک ڈرائیور ہے وہ بھی ایمولیٹ ہوگا جو ریموٹ آپ کا سسٹم ہے جہاں پہ پروگرام اے انسٹالڈ ہے، اور اسی طرح ہارڈ ویئر انٹرفیس جو نیٹیو لائبریریز ہیں اور اس کے علاوہ ریکارڈڈ لنک لائبریریز ہیں، دے ول بی انٹرفیسڈ ود دی پروگرام اے تھرو ایمولیٹر یا جسٹ ان ٹائم ریکمپائلر کے ساتھ۔ تو اس طرح ہم یوزر ایپلیکیشن لیول ورچوائزیشن کو اچیو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ ورچوائزیشن کو انیبل کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سے ٹولز اور میکانزمس اویلیبل ہیں۔ تو جنرلی ہمارے پاس 3 طرح کی کلاسز ہیں ورچوئل مشین آرکیٹیکچر کی۔ اٹ ڈپینڈس دا پوزیشن آف دی ورچوائزیشن لیئر۔ تو ہمارے پاس جو کلاسز ہیں ورچوئل مشین آرکیٹیکچر کی وہ 3 ہیں۔ نمبر 1 ہائپروائزر آرکیٹیکچر، نمبر 2 پیرا ورچوائزیشن، اور نمبر 3 جو ہے ہوسٹ بیسڈ ورچوائزیشن ہے۔ ورچوائزیشن انیبل کرنے سے پہلے جو ٹپیکل ایک مشین ہوتی ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم سارے ہارڈ ویئر ریسورسز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا، ہارڈ ویئر ریسورسز کو ڈی ایلوکیٹ کرنا، یہ ساری مینجمنٹ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کی ہوتی ہے۔ جب ورچوائزیشن کسی سسٹم پہ انیبل کر دی جاتی ہے تو یہ جو ورچوائزیشن لیئر ہے وہ ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو اس کیس میں جو ورچوائزیشن لیئر ہے دس از ریسپانسبل فار کنورٹنگ پورشن آف دی ریئل ہارڈ ویئر انٹو ورچوئل ہارڈ ویئر۔ اسی وجہ سے جو ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم ہیں لائک لائنکس اینڈ ونڈوز وہ سیم فزیکل مشین کے اوپر ایک ساتھ رن کر سکتے ہیں۔ ہائپروائزر کو ورچوئل مشین مانیٹر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سیم ورچوائزیشن آپریشن پرفارم کرتے ہیں۔ ہائپروائزر جو ہے یہ ہارڈ ویئر ورچوائزیشن ٹیکنیک ہے، اور اس کے ذریعے ہم ملٹیپل آپریٹنگ سسٹمز کو ملٹیپل آپریٹنگ سسٹم کو ورچوئل مشین کے اوپر رن کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم ہم ایک مشین ہوسٹ مشین کے اوپر رن کریں گے ان کو گیسٹ کہتے ہیں، اور اس کو ورچوئل مانیٹر موڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو 2 ٹائپس ہیں اس میں ٹائپ 1 جو ہے وہ کہلاتی ہے بیئر میٹل ہائپروائزر۔ تو یہ جو بیئر میٹل ہائپروائزر ہے اس میں ورچوائزیشن سافٹ ویئر کو انسٹال کیا جاتا ہے آن دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر لائک سی پی یو میموری وغیرہ کے اوپر۔ تو اس میں جتنے بھی آپریٹنگ سسٹم ہے، جتنے بھی گیسٹ آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ آن ٹاپ آف دا ورچوائزیشن
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, या जिसको हम हाइपरवाइज़र कह लें, अबव द हाइपरवाइज़र उनको इंस्टॉल किया जाता है। जो ओरिजिनल CP/CMS हाइपरवाइज़र है, दैट वाज डेवलप्ड बाय IBM, वाज ऑफ दिस काइंड। तो जो ओरिजिनली जो पहला वर्जन IBM ने प्रोड्यूस किया था हाइपरवाइज़र का, उसमें दैट वाज बेयर मेटल हाइपरवाइज़र। हाइपरवाइज़र में जो दूसरी टाइप है वो दैट इज़ होस्टेड हाइपरवाइज़र है। तो होस्टेड हाइपरवाइज़र जो है वो एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होता है। जो हाइपरवाइज़र की लेयर होती है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और हार्डवेयर के दरमियान में होती है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हाइपरवाइज़र के ऊपर रन हो रहे होते हैं, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें उसको वो मैनेज नहीं कर रहा होता ये वर्चुअलाइजेशन कैसे हो रही है और कैसे इनेबल हो रही है। नेक्स्ट है फुल बाइनरी ट्रांसलेशन एंड होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन या VM आर्किटेक्चर, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहते हैं फुल वर्चुअलाइजेशन और दूसरी है होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। जो फुल वर्चुअलाइजेशन है उसमें जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और ये डिपेंड कर रहा होता है बाइनरी ट्रांसलेशन के ऊपर, और जितने भी सेंसिटिव ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं दोज आर वर्चुअलाइज्ड। जबकि होस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर होस्ट और जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों यूज़ होते हैं। जो एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर लेयर है वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में क्रिएट की जाती है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें होस्ट कंप्यूटर शो किया गया है। होस्ट कंप्यूटर जो है वो एक सिस्टम हार्डवेयर है, एक फिजिकल मशीन है जिसके ऊपर वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल किया गया है, और वर्चुअल मशीन जो है उसके ऊपर डिफरेंट जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं दे आर रनिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्चुअल मशीन। तो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 1 है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 2 है, और इस तरह डिफरेंट जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड हैं ऑन द टॉप ऑफ वर्चुअल मशीन्स। ये जो अप्रोच थी VMware ने इम्प्लीमेंट की थी। VMware इज अनदर वेंडर विच प्रोवाइड्स वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस। तो VMware ने इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया था, और इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज ने इस जो टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया है, और ये सबसे पॉपुलर टेक्निक है जिसमें एक होस्ट कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो इसमें जो VMware है उसने VMM को रिंग 0 में रखा, जो वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, और जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिंग 1 के ऊपर है। जो VMM है इट स्कैन्स द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, और फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइड द प्रिविलेज्ड कंट्रोल एंड बिहेवियर सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस को। जब ये इंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो देन दे आर ट्रैप्ड इनटू द VM। तो जो उसको एमुलेट करता है उन इंस्ट्रक्शन का जो भी बिहेवियर होता है उनके मुताबिक उनको एमुलेट कर देता है। तो ये जो मेथड इस एमुलेशन में यूज़ होता है इसको कहते हैं बाइनरी ट्रांसलेशन, जहाँ पे सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन को एमुलेट किया जाता है, बाइनरी ट्रांसलेशन की जाती है। इस वजह से जो फुल ट्रांसलेशन है प्लस बाइनरी ट्रांसलेशन और डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इसमें इनेबल होती है। नेक्स्ट है होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन।
An alternative VM architecture is to install a virtualization layer on top of the host operating system. This host operating system is still responsible for managing the hardware. तो जिस तरह ये डायग्राम में शो किया गया कि वी हैव फिजिकल हार्डवेयर विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ एंड ग्राफिक कार्ड, और इसके ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और उसके ऊपर वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड हैं, और ये जो वर्चुअल मशीन है ये क्रिएट हुई है वर्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन में। तो इस तरह की जो वर्चुअलाइजेशन है इसमें कुछ डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है कि जो यूज़र है वो वीएम को इंस्टॉल कर सकता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किए बगैर, और इसमें जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो रिलाई कर रहा होता है होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ताकि जो डिवाइस ड्राइवर हैं या इसके अलावा जो लो लेवल सर्विसेज हैं वो वर्चुअल मशीन को प्रोवाइड कर सके। तो इस वजह से जो वीएम डिज़ाइन है वो और इसकी डिप्लॉयमेंट है वो सिंप्लीफाई होती है होस्ट बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में। दूसरा इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि होस्ट बेस्ड अप्रोच appeals to many host machine configurations compared to the hypervisor VMM architecture. The performance of the host based architecture may also be low. Next type of virtualization is para virtualization. पैरा वर्चुअलाइजेशन को अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है देन वी नीड टू मॉडिफाई द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। पैरा वर्चुअलाइज्ड वीएम जो है ये एक स्पेशल एपीआईज प्रोवाइड करता है दैट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफिकेशन इन द यूजर एप्लीकेशन। तो परफॉर्मेंस जो डिग्रेडेशन है वो एक क्रिटिकल इशू है वर्चुअलाइजेशन में जब भी हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर हम कंपेयर करें फुल वर्चुअलाइजेशन को और पैरा वर्चुअलाइजेशन को, तो फुल वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, और इसमें कोई क्रिटिकल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एमुलेट किया जा सकता है बाइनरी ट्रांसलेशन के ज़रिए। VMware Workstations applies full virtualization, which uses binary translation to automatically modify x86 software on the fly to replace critical instructions. तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि जब भी कोई क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी तो सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन का बेनिफिट ये है कि इसमें ओवरहेड नहीं है, लेकिन एक पैरा वर्चुअलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन रखना उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड। पैरा वर्चुअलाइजेशन में जो एक ओवरहेड है कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना होता है, जिसमें नॉन वर्चुअलाइजेबल इंस्ट्रक्शंस को रिप्लेस किया जाता है बाय हाइपर कॉल्स। हाइपर कॉल्स जो हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं विद हाइपरवाइजर और वीएमएम। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ज़ेन यूज़ कर सकते हैं, डेनेली यूज़ कर सकते हैं, या VMware ESX को भी यूज़ किया जा सकता है। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन में अगर हम ज़ेन आर्किटेक्चर को डिस्कस करें तो ज़ेन आर्किटेक्चर जो है वो एक ओपन सोर्स हाइपरवाइजर प्रोग्राम है जिसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया था। ज़ेन जो है वो माइक्रो कर्नल हाइपरवाइजर है जो सेपरेट करता है पॉलिसी को मैकेनिज्म से। ज़ेन के अंदर कोई डिवाइस ड्राइवर नहीं होते, तो रन नेटिवली
ये सिर्फ एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फिज़िकल डिवाइसेस तक डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। इस वजह से जो zen हाइपरवाइजर है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है बिकॉज वी डोंट हैव डिवाइस ड्राइवर्स इंक्लूडेड इन द पैकेज। Zen provides a virtual environment located between the hardware and the operating system. तो ये एक डायग्राम है। The Zen architecture special domain zero for control and I/O and several guest domains for user applications. तो जो डोमेन ज़ीरो है ये कंट्रोल के लिए है जिसमें एप्लीकेशंस हैं, और जो I/O है वो गेस्ट डोमेन्स के लिए है जिसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो रन हो सकती हैं। डोमेन ज़ीरो और फिर जीनो लाइनक्स और जीनो विंडोज़ ये गेस्ट डोमेन है और इसके ऊपर नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन रन हो सकती हैं। सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, तो वर्चुअलाइजेशन जो है वो सीपीयू की भी हो सकती है, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस की भी वर्चुअलाइजेशन हो सकती है। वर्चुअलाइजेशन क्या है या जो वीएम वर्चुअल मशीन क्या है, दिस इज़ अ डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंप्यूटर सिस्टम जिसके अंदर बहुत सी जो वीएम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको होस्ट प्रोसेसर के ऊपर रन किया जाता है नेटिव मोड के अंदर। इस वजह से जो अनप्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं वर्चुअल मशीन की वो डायरेक्टली होस्ट मशीन के ऊपर रन हो सकती हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी को बेहतर रखा जा सके। इसके अलावा अगर कोई क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन है उनको जो है हैंडल किया जाता है फॉर करेक्टनेस और स्टेबिलिटी के लिए। जो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रिविलेज्ड मोड में